Good morning, students. Today, our topic is calculation of opening capital. So, let's start. As we have seen in our earlier classes, we have already done the partner's capital account, in which we are having the opening balance and we add the additional capital. Any capital which we introduce during the year, we will add it into the capital, and the partners are given interest on its capital, then that interest will be added into its capital account. Then after that, if a partner is given any salary or commission, then that salary or commission will be added to his account, as well as the profit during the year, the profit and its share is given in the partner's capital account. And there are certain terms, such as if a partner has made any drawing against capital, then that amount is with list from the partner's capital account. If any partner has done any drawing against the profits, then that also reduce the partner's capital account. And the partner has to pay the interest on drawing, so that interest is an expenses, खर्चा है वो हमारे पार्टनर के लिए, तो that will also be reducing the partner's capital account. And after that, if a firm has suffered any loss during the accounting year, and then the partner's share in the loss will reducing the partner capital account. At last, we will get the partner's capital balance. So now, if we have to calculate the opening capital, then it is obvious that we are given with the balance CD, right? We will always be given the balance CD. This will be given in case of opening capital calculation. So how from this chart, from this account in our mind, we have to calculate the partner's opening capital. So write it down. Calculation of opening capital in case of fixed account, in case of fixed capital accounts. So as we have done, we have two ways to make the accounts, two ways to maintain the capital. So first one is fixed and second one was the fluctuating. In fixed, all the entries related to the capital, related to the addition of capital or withdrawal of the capital, are posted into the fixed capital account. But all the entries other than these are transferred to the another account, that is the partner's current account. And in fluctuating account, there is only one account in which we pass on all the entries. So when we calculate the partner's opening capital, in case of fixed capital, then only two entries are considered. The first one is addition of capital and second one is withdrawal of capital. So as over here हमें इधर का बैलेंस दे रखा है और हमें ये वाला कैलकुलेट करना है ओपनिंग वाला, तो हम वापस के लिए उल्टा चलना शुरू कर देंगे. तो जो चीज़ हमने इधर माइनस की थी वो हम ऐड करना शुरू कर देंगे और जो हमने यहाँ पे ऐड की थी वो हम माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल at the end of the year, वो हमारे पास गिवन होगा, हम वो राइट डाउन कर लेंगे. फिर आफ्टर दैट जो हमारी ड्राइंग है ना, जो हम तो यहाँ पे सिर्फ विड्रॉल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ड्राइंग. मैंने क्या बोला था कि इधर वाली एंट्रीज ऐड हो जाएंगी और इधर वाली एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, क्योंकि हमने लास्ट रिजल्ट से ओपनिंग रिजल्ट तक पहुंचना है. ठीक है जी. तो इसमें ऐड हो जाएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और इसी में से लेस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल. जो भी इंट्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द ईयर. और इन दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई भी एंट्री नहीं आएगी. तो हमारे पास इससे नेट क्या आ गया, हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो क्या होएगी,
opening capital, that is capital at the beginning of the year. Done? But अगर हमने कैलकुलेशन जो है वो उस अकाउंट में करनी है, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल की तब करनी है जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, देन आवर फॉर्मूला विल बी इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल we will calculate opening capital as follows. तो ये हमारा पहला केस, ये हमारा सेकेंड केस. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सेम कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट इट डाउन. फिर उसमें हम ड्राइंग अगेंस्ट capital, drawing against profit, interest on drawing or any share of loss will be added. तो हम ये चारों चीज़ें ऐड कर देंगे. Add drawing against capital, drawing against profit, interest on drawing and share of loss. तो हमारे पास ये चार चीज़ों का टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे. फिर इन्हीं में से लेस हो जाएगा इधर की आइटम्स जो कि हैं एडिशनल कैपिटल, और कोई पार्टनर को सैलरी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, या फिर उसका प्रॉफिट का शेयर. तो वो चार आइटम्स, दैट इज एडिशनल कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन वी हैव सैलरी और कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो ये चारों आइटम्स क्या कर देंगे हम, लेस. इन चारों का टोटल करके यहाँ पे ये लेस हो जाएंगी और हमारे पास नेट जो आइटम आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. डन. सो इसी बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. आपके बुक में क्वेश्चंस हैं. हमने लास्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किया था और आज हमने किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तो इन्हीं के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ योर बुक. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 41. एंड एज पर दिस क्वेश्चन हम सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 अकाउंट्स हैं. यहाँ पे हमें कैपिटल को कैलकुलेट करना है एज पर फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मान के भी, और हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है और तब जब हमारी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है. तो हम यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे. राइट इट डाउन. सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल जब हमारी कैपिटल क्या है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड. डन. तो हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, एक है सिमरत, एक है भीर. तो उसकी सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एट एंड. यहाँ पे रुपीस हमें मार्क करना है, रुपीस. तो इसकी कैपिटल कितनी है, 4,80,000 और इसकी है 6 लाख.
फिर हमें ड्राइंग्स ऐड करनी होती है और कैपिटल इंट्रोड्यूस को लेस करना होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो हैं हमारे पास वो हम ऐड कर देंगे। जो हमारी आउट ऑफ कैपिटल जो ड्राइंग है हम सिर्फ वही लेंगे यहाँ पे। तो सिमरत की हमारी ड्राइंग्स थी 2,40,000 1 अक्टूबर को, और बीर की हमारे पास ड्राइंग्स थी 60,000 1 मई को, और इसमें से लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। सिमरत की एडिशनल कैपिटल थी हमारे पास 1,20,000 1 मई को, और जो बीर की एडिशनल कैपिटल थी 1 अक्टूबर को 3 लाख की। इन दोनों आइटम्स के अलावा इस कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आता, तो इससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 6 लाख, और ये हमारे पास आ गया 3,60,000। ठीक है जी। अब हम इनका कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सिमरत कैपिटल, वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमारी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जो कि है 6 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू कितने महीने हमारी ये कैपिटल इतनी 6 लाख की रही है, वो सिर्फ 1 महीना है, क्योंकि इस पर्सन ने अगले महीने मई में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली थी। ठीक है जी। तो 6 लाख की जो हमारी कैपिटल थी वो सिर्फ 1 महीने के लिए थी। फिर अगले महीने मई में उस इंसान ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1,20,000, तो ये 6 लाख की जगह यहाँ पे 7,20,000 हो गया। तो क्योंकि हमारी 1,20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई, 7,20,000 इंटू 6/100 इंटू, और ये 7,20,000 कितनी देर चली, हमने ड्राइंग की थी 1 अक्टूबर को, तो हमारा ये टाइम पीरियड कितना हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर को तो ड्राइंग हो ही गई, तो सिर्फ ये 5 महीने हमने इतनी कैपिटल को रखा। फिर आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास और एडिशन कैपिटल आई, और सॉरी इसके बाद हमारे पास ड्राइंग हुई। 7,20,000 में से हमने 2,40,000 माइनस कर दिए, तो वो हमारे पास कितने बच गए, 4,80,000 जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन था। उसके ऊपर रेट कितना हो गया 6/100 इंटू कितने महीने रह गए, 6 महीने रह गए लास्ट पे। तो इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6 लाख इंटू 6, तो हमारे पास इन कैलकुलेशंस के बेस पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹35400। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। बीर की कैपिटल पहले तो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 3,60,000। हाँ जी। तो इस कैपिटल के ऊपर इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर इसने सबसे पहले क्या किया, ड्राइंग की 60,000 की, इसने ड्राइंग की। तो ये कैपिटल 3,60,000 सिर्फ 1 महीने के लिए था। फिर उसके बाद ड्राइंग 60,000 की हुई, तो 3 लाख रह गए हमारे पास। उसके ऊपर 6 लाख का इंटरेस्ट रेट, और वो कैपिटल हमारे पास सिर्फ 5 महीने के लिए रही, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को ऐड कर लिया था और कैपिटल। तो हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सिर्फ 5 महीने रही, और अगस्त सितंबर के बाद हमने अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी थी। वो कितनी थी 6 लाख, वो कितनी थी 3 लाख रुपए।
तो इसके अंदर 3 लाख और ऐड हो गए तो हमारे बन गए 6 लाख, 3 लाख प्लस 3 लाख इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12 और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर आ गया। तो इससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट जो कि है ₹27300। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जब हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा बी पार्ट, जब हमारी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होगी तो उसमें सभी एंट्रीज पास होंगी। जो भी एंट्रीज हमारी होती हैं, जितना भी कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज आती हैं वो सभी एंट्रीज आएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये हमारा वर्किंग नोट होगा बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल when capital are fluctuating, when capital are fluctuating। तो इसमें हमारे पास सेम 2 पर्सन्स हैं, सिमरन एंड बीर। उन दोनों की कैपिटल एट द एंड कितनी थी? कैपिटल एट एंड 4,80,000 और बीर की थी हमारे पास 6 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको। इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। तो हमारे पास ड्राइंग 2 टाइप्स की यहाँ पे है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से हमने ड्राइंग्स कितनी की थी? जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया है, इसने की थी 2,40,000 की और इसने 60,000। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा था इन्होंने? ड्राइंग इन्होंने आउट ऑफ प्रॉफिट भी की है। लास्ट लाइन पढ़ो बच्चों क्वेश्चन की, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्राइंग हैज़ बीन गिवन। तो उन्होंने ड्राइंग्स भी दी है जो सिमरन और बीर ने अपनी प्रॉफिट्स में से ड्राइंग की है। तो सिमरन ने की है 1,20,000 की ड्राइंग और बीर ने की है अगेन 60,000 की ड्राइंग। फिर हमने एडिशनल कैपिटल देखनी है, लेस एडिशनल कैपिटल वो सेम होगा। एडिशनल कैपिटल जो हमने दूसरे पार्ट में किया था, दैट इज 1,20,000 एंड 1 लाख एंड 3 लाख। फिर इसमें और क्या एंट्री आ सकती है? हमारे प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट्स हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं और जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये लेस हो जाएंगे। तो प्रॉफिट्स जो हमारे हैं 2,40,000 और उनको हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 वी गेट 1,44,000 and here we get 96,000। सभी एंट्रीज कंप्लीट हुई। तो इसके बाद हमारे पास नेट जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे हमारी आ गई 5,76,000 and here it comes to be 3,24,000. So now हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल गई है। हमने क्वेश्चंस में किया था कि हम पहले ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, उसके बाद हमने किया था कि हमारी जो एडिशन होएगी, जितनी एडिशन जितनी देर के लिए हम लेके आए हैं, जितने पार्ट के लिए उतने पार्ट पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा और अगर ड्राइंग की है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो उतना कैपिटल माइनस करके जितना रिमेनिंग कैपिटल होगा उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे हम वैसे ही उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। First of all, we will write about Simran's capital.
सिमरन्स कैपिटल में हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बेटा जब हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी लगाते हैं तो हम सिर्फ वही कैपिटल्स को देखते हैं जो तो आउट ऑफ कैपिटल है, तो वही मतलब आइटम्स को देखेंगे, एक तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। इन दोनों के अलावा और कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना ही चार्ज किया जाएगा। हम ये एडिशनल कैपिटल के बाद प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सिमरन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है 5,76,000 इंटू 6%, और ये भी हमारे पास एक महीने के लिए सेम, क्योंकि इस पर्सन ने हमारे कैपिटल में 1 मई को एडिशन किया था, तो सिर्फ एक महीने के लिए अप्रैल के महीने के लिए उसकी कैपिटल इतनी है। फिर उसकी कैपिटल बढ़ गई है और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1,20,000, तो जब हम इसको 1,20,000 ऐड करेंगे तो ये कैपिटल इतनी बन जाएगी 7,96,000 इंटू 6% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये कैपिटल सेम वे जैसे हमने पैसे लास्ट पॉइंट में कैलकुलेट किया था, ये 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये फ्रॉम मई टू 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर क्या माना जाएगा, जो उसका लास्ट मंथ है वो तभी ख़त्म हो जाएगा, 1 अक्टूबर नहीं बीच में ऐड होगा, तो वो 5 मंथ्स बनते हैं। फिर इसी कैपिटल में से उसने कितना कैपिटल ड्रॉ कर लिया, 2,40,000, तो हम 696,000 में से 2,40,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा दिस अमाउंट। तो इस अमाउंट के ऊपर 456 के ऊपर 6% इंटू 6/12 के हिसाब से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। ठीक है बच्चों, देन हमारे बीर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अब हमारी ओपनिंग कैपिटल है 3,24,000 इंटू 6% इंटू ये भी एक महीना है क्योंकि अगले महीने इसने ड्राइंग कर ली, और फिर इसने 3,24,000 में से 60,000 की ड्राइंग की जो अगेंस्ट कैपिटल है, तो ये बच गया हमारे पास 624,000 246,000 इंटू 6/100 इंटू 5 मंथ्स, बिकॉज इसने 1 अक्टूबर को एडिशन की है। और इसी में फिर उसने 3 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो ये बन गया हमारे पास 564,000, तो इसमें 564,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 6 मंथ्स के लिए ये हमारी लास्ट में कैपिटल बच गई है। और इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बीर्स कैपिटल विल बी ₹25140। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, सभी पॉइंट्स रिलेटेड टू ओपनिंग कैपिटल एंड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल and calculation of capital by fixed and fluctuating method and interest on capital calculation। तो सारा जितना भी टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो रहा है इसमें, और इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन of our syllabus. So tomorrow we will do more practical questions. So please complete your note, students, and see you tomorrow. Thank you.